Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himrita Chandolia, class 8. Today we are going to start the last chapter of our science book, that is chapter number 18, pollution of air and water. It is very easy chapter of our book. Students, in this chapter we are going to discuss about the pollution of air and water, their causes and their harmful effects. Clear everyone? In today's video, we are going to discuss about the air pollution and its effects. Students, we all know that what is air pollution and what is water pollution. But in this chapter, we will discuss it in the enhanced way. Student, अब ये water pollution और air pollution क्या होता है, इसको समझने से पहले let's discuss the importance of air and water. अब air and water के बिना क्या हम हमारी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? नो, नॉट फॉर अ सेकेंड. वाटर के बिना तो थोड़ा बहुत हम सोच भी लें कुछ सेकेंड के लिए, बट विदाउट एयर नो, लाइफ इज इम्पॉसिबल. सो स्टूडेंट, दीज natural resources, water and air, are very important for the living being. So students, air and water are two important natural resources, and air is essential for living organisms because oxygen present in air reacts with the carbohydrates that are present in food to liberate energy, and that process we already had discussed in class 7th, isn't it? And student, for every action we require energy, and here in this manner we are getting energy. Clear everyone? समझ में आ गया? और भी एयर हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज़ में काम आती है. ठीक है, अगर हम छोटी क्लासेस में बात करें तो हम जब हॉट एयर बैलून पढ़ा है, हमने काइट फ्लाइंग पढ़ी है, हमने हमारी विंड मिल्स पढ़ी हैं. सब जगह हमारे लिए क्या ज़रूरी है? एयर ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, along with air, water is essential for life processes such as digestion of food, transport of various substances, removal of waste from the body, etc. Clear? एक छोटे से बीज को उगने के लिए भी, that means the seed germination, for photosynthesis process, for the transport of the nutrients, for all these things we require water. Clear everyone? Water is also essential for plants. It helps in germination of seed and transport of nutrients. Clear everyone? And बिना पानी के तो हम फोटोसिंथेसिस अज्यूम नहीं कर सकते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फ्रॉम दैट प्लांट वी आर गेटिंग सो मैनी थिंग्स, इजंट इट? एंड दैट्स व्हाई वाटर इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. स्टूडेंट्स, कभी अगर आपने नोटिस किया हो कि हमने अगर किसी प्लांट में 2-3 दिन तक पानी नहीं दिया तो वो पेड़ मुरझा जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसमें पानी डाल देते हैं, कुछ वक्त के बाद हम नोटिस करते हैं कि वो वापस से उतना ही फ्रेश लगने लगता है. सोच के देखो, अगर हमें कुछ घंटों तक पानी नहीं मिले तो हम भी ऐसे ही दिखेंगे, और जैसे ही हमें पानी मिल जाएगा, वी स्टार्ट अगेन स्माइलिंग एंड वी ऑल्सो फील refreshing, isn't it? Student, this is the importance of water and air. But by the human activities or by some natural activities, these natural resources are get polluted, isn't it? So क्या है रीज़न कि how the water, how the air are getting polluted? What are the main reasons behind it, and what are their harmful effect on human life or on other non-living things that we are going to discuss here? Okay, students, due to certain natural and human activities, always remember that कि along with the human activities, some natural activities are also responsible for the pollution. Clear everyone? Water and air are getting polluted. We will study about the harmful changes taking place in our surroundings and their effects on our life. Okay? अब हम start करते हैं हमारा air pollution. अब air pollution से आप क्या समझते हैं? That means कि air के अंदर क्या है? Pollution है. हिंदी में बोलें तो वायु प्रदूषण. ठीक है, अब ये वायु प्रदूषण का मतलब क्या है कि हमारी जो एयर है वो हमारे लिए कैसी हो गई है?
हार्मफुल हो गई है, isn't it? अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले तो मैम जो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है और जो गाड़ियों से निकलने वाला स्मोक है और जो ईंधन जलता है, फ्यूल्स जलते हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, हमारी एयर को पोल्यूट कर देते हैं एंड दिस इज सिंपल द एयर पोल्यूशन, isn't it? स्टूडेंट्स, अब हमारा जो एयर है, सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं जो हम 4th और 5th क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं। देखो, हमारी अर्थ पे नियर अराउंड 78% तो क्या है बच्चा, नाइट्रोजन, क्लियर, एंड आफ्टर दैट 20.9 और राउंड फिगर में हम कहें तो 21% है हमारे ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, क्लियर। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे 0.03 हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अलॉन्ग विद दैट अदर गैसेस है, आर्गन गैसेस हैं, क्लियर एवरीवन। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, क्लियर। दिस इज द सिंपल composition of air. I hope this is clear. समझ में आ गया? Class, when the ratio is disturbed for any reason, the air is said to be polluted. Clear? समझ में आ रहा है? The substances which cause pollution of air are called air pollutant. वो substances जिनकी वजह से air pollute हो रही है, those substances are known as air pollutants. ये हमें second चीज़ समझनी है, ठीक है? Sometimes such substances may come from natural sources like smoke and dust arising from forest fires, जंगल में जो आग लगती हैं, ठीक है, and volcanic eruption. These are the natural causes of air pollution. देखो, जब volcanic eruption होता है, जब जंगल में आग लगती है तो धुआं उठती है, ठीक है, and that is also a cause of air pollution. Clear everyone? Students, pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities. अब वो human activities क्या हैं कि हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेट कर दी हैं, हमने हमारे आने जाने की सुविधाओं के लिए व्हीकल्स बना लिए हैं, और वो व्हीकल्स चलते किससे हैं? बाय यूजिंग द फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, isn't it? उनके कंबशन से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, दैट इज द मेजर पॉल्यूटेंट. क्लियर एवरीवन? The sources of air pollutants are factories, power plants, automobile exhaust, and burning of firewood and dung cakes. Clear? Students, we can divide these pollutants into two categories. Okay? So, all pollutants can be divided into two categories. First one is gaseous air pollutants. अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि the pollutants present in the form of gases. Clear everyone? For example, carbon monoxide, oxides of nitrogen and sulfur etc. Clear? अब जो second category है, that is the solid air pollutants. As it is clear from its name, the pollutants in the form of solid. देखो, अब फॉर्म ऑफ सॉलिड में क्या है? स्मोक, डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक्सेट्रा. सो द एयर पॉल्यूटेंट्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट वन इज गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर एक्सेट्रा. सेकेंड वन इज सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स लाइक डस्ट, like your smoke and suspended particles. Clear everyone? Students, let's discuss the harmful effects of air pollutants. अब इन air pollutants को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, gaseous and solid. अब इन सारे air pollutants से होने वाले harmful effects को हम one by one डिस्कस करते हैं. And
Very first is कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बच्चा आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अगर आपने कुछ वक्त पहले कोई न्यूज़ पढ़ी हो या टीवी में न्यूज़ देखी हो, तो ड्यूरिंग विंटर्स हम क्या करते हैं कि हम हमारे घर को गर्म रखने के लिए हम घर में अंगीठी जलाते हैं। दैट मीन्स दैट इज़ द बर्निंग ऑफ कोल, एग्जैक्टली, इजंट इट? उससे क्या होता है, उससे हम ये सोचते हैं कि धुआं कम होता है, क्लियर? और उससे क्या होता है, हमारा घर गर्म रहता है। और घर को गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे विंडोज़ और डोर्स को भी क्लोज कर देते हैं। बट समटाइम्स इट लीड्स टू वेरी हार्मफुल फॉर अस। हाउ? आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो या डिस्कस किया हो फैमिली में, तो कई बार होता है कि जब हम पूरी रात अंगीठी घर में जला के सो जाते हैं, तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग समटाइम्स इट हैपन्स दैट दोज पीपल्स आर डेड। यस, हाउ? बिकॉज दिस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज़ हाईली पॉइजनस। ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन कर लेती है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ कर देती है। और जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम होता है, दैन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू सर्वाइव। Clear everyone? So student, this is highly poisonous gas that is produced by the incomplete burning of fuels such as petrol and diesel. Although we know that it is poisonous, carbon monoxide combines with hemoglobin and decreases oxygen carrying capacity. क्लियर एवरीवन? सो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखें, अगर हम ऐसे घर में अंगीठी वगैरह जलाते हैं तो उसको एक वक्त के बाद बंद कर दें, पूरी रात उसको जलती हुई ना छोड़ें। और प्लीज़ ये खिड़कियाँ और दरवाजे भी खुले रखें, ठीक है? पूरे मत खुले रखो, बट एटलीस्ट फॉर द वेंटिलेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब class, carbon dioxide is beneficial for the plants because they use carbon dioxide for the photosynthesis process, isn't it? Students, instead of that, carbon dioxide is also one of the major causes of air pollution. Ab how it become a pollutant? The concentration of carbon dioxide is increasing day by day due to increasing automobile, burning of coal and other fossil fuel, deforestation etc. देखो, हमने ऑटोमोबाइल्स के नंबर्स बढ़ा दिए, ठीक है? हमें क्या चाहिए, फटाफट से कहीं पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं अपनी गाड़ी और चल देते हैं, ठीक है? नेसेसरी हो या नहीं हो तो भी हम यूज़ करते हैं। जब हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं बेटा, इट यूजेस द फ्यूल एंड बाय द कंबस्शन ऑफ दैट फ्यूल the harmful gases are producing. Clear everyone? Students, अब क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, नॉर्मली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है? ट्रीज उसको कंज्यूम कर लेते हैं खुद के लिए। बट बिकॉज ऑफ दिस डिफॉरेस्टेशन, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को, जो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको यूज़ करने के लिए कौन है, कोई नहीं है, प्लांट्स और ट्रीज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज डिफॉरेस्टेशन। सो दैट्स व्हाई डे बाय डे द कंसंट्रेशन ऑफ carbon dioxide is increasing in our atmosphere. Student, the increased concentration of carbon dioxide traps solar radiation, which in turn increases the atmospheric temperature, and this is called global warming, जो हम अभी आने वाले कुछ स्टेप्स के बाद डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंड इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट जो पॉल्यूटेंट है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plants. क्लियर एवरीवन? पावर प्लांट्स में जो फ्यूल यूज़ होता है उसके कंबशन से ये सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग परमानेंट लंग डैमेज। अब सोचो, परमानेंट
लंग डैमेज ही हो जाए तो इंसान सांस वांस कैसे लेगा भाई. क्लियर. नेक्स्ट वन, oxides of nitrogen. Nitrogen present in fuels on burning react with oxygen to produce their oxides. These oxides combine with other air pollutant. अब other air pollutant क्या है? Smoke, ठीक है, and dust and fog. अब fog क्या होता है? सर्दियों में fog होता है ना, और जैसे ही ये ऑक्साइड उस fog से कंबाइन करते हैं दे फॉर्म स्मॉग. और स्मॉग से क्या होता है? विजिबिलिटी कम हो जाती है जब हम गाड़ी चलाते हैं. आप देखो ना, जितने भी जो मेट्रो सिटीज़ हैं लाइक हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ तो ये स्मॉग वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमन है बच्चा. ठीक है, विजिबिलिटी नहीं रहती, आपके पास में कोई व्हीकल है वो तक नहीं दिखता है. क्लियर एवरीवन. The smog causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in children. Clear? अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और हार्मफुल पॉल्यूटेंट, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC, शॉर्ट फॉर्म CFC. अब ये CFC क्या होते हैं? देखो बच्चा, पुराने ज़माने में जो फ्रिजेस होते थे उनके रेफ्रिजरेशन में हम CFC को काम में लेते थे. आज भी जो ACs हैं उनमें CFC काम में लिया जाता था. ठीक है, तो ये जो CFC है ना, ये क्या है? बहुत हार्मफुल है. ठीक है, ये रिलीज़ कहाँ होते हैं? एयर में. और एयर में रिलीज़ होते हैं तो क्या काम करते हैं? एज अ पॉल्यूटेंट, एयर को पॉल्यूट करते हैं. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज CFCs हमारा जो ओजोन लेयर है, दैट इज़ द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ आवर अर्थ, आवर एटमॉस्फेयर, इट गेट्स होल्स. क्लियर एवरीवन. और जिसको हम कहते हैं ओजोन होल. Clear everyone? Students, another kind of pollutant that are used in aerosol sprays. आप वो डियोस करते हैं ना, फुस 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 फुस, क्या है वो? That is also the CFCs. And as refrigerant in the old models of refrigerator and air conditioner. Clear everyone? ACs. CFC damage the ozone layer of the atmosphere, which absorbs harmful ultraviolet radiations coming from the sun and protect us. देखो, हमारी अर्थ के ऊपर ये हमारी ओजोन लेयर है. ये हमको क्या करती है? जो सन से हार्मफुल UV रेज आ रही हैं इनसे हमें प्रोटेक्ट करती है. लेकिन बार बार CFC के कंटिन्यू यूज से क्या होता है? दे आर डैमेजिंग दिस लेयर. And student, just because of that there is a hole in the ozone layer. Clear everyone? अब ये ओजोन होल के बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर की. दिस इज द अनदर पॉल्यूटेंट. ओके, in addition to the above gases, many suspended particles are also present in air. That means it comes under the solid air pollutants. Okay, these particles reduce visibility. Inhalation of these particles cause respiratory diseases. Okay, dust, cement, carbon and ash particles are main particulate pollutants present in air. आपकी जो स्टील फैक्ट्रीज़ होती हैं या फिर आयरन जो फैक्ट्रीज़ होती हैं ना, वहाँ से भी जो निकलता है पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं, दैट कम्स अंडर द पार्टिकुलेट मैटर. और इन पार्टिकुलेट मैटर में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? डस्ट, सीमेंट, कार्बन, एश पार्टिकल्स. क्लियर एवरीवन? अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अ वेरी हार्मफुल, अ वेरी हज़ार्डियस, दैट इज़ एसिड रेन. बारिश देखी है सब बच्चों ने. सोचो, बारिश का पानी जो बरसता है अगर उसके साथ एसिड भी आए तो हाउ हार्मफुल इट इज़, इज़न्ट इट? वी कैन इमेजिन. बिकॉज ये सब जगह नहीं होती है. कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जहाँ पर रिफाइनरीज़ हैं, वहाँ पर ये एसिड रेन देखने को मिलती है. बच्चा, अब ये एसिड रेन क्या होती है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको डिस्कस करते हैं. बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे फॉसिल फ्यूल हैं.
इनके बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, all these pollutants are produced and they remain in air. Clear everyone? समझ में आ गया? Oxides of nitrogen and sulfur react with water vapor present in atmosphere to form nitric acid and sulfuric acid. क्लास 8 ध्यान रखिएगा, रिमेंबर इट. देखो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? वाटर वेपर है. क्लियर? अब जो ये फैक्ट्रीज़ हैं, जो रिफाइनरीज़ हैं, उनसे जो निकलने वाले ऑक्साइड्स, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर, ये क्या करते हैं? इस वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. द एसिड ड्रॉप्स डाउन विद रेन, और जब बारिश होती है तभी उसके साथ नीचे आते हैं एंड दे मेक द रेन acidic, and in simple language this is called acid rain. Clear everyone? अब जो acid rain है उसमें क्या क्या आ रहा है? Nitric acid, sulfuric acid along with the water. Clear everyone? Okay? अब हम बात करते हैं damaging effects of acid rain. सिंपल सी बात है, acid rain कोई beneficial तो किसी भी वे में है नहीं. It is harmful only. So student, acid rain is harmful to aquatic life because it kills fishes and other aquatic animals and aquatic plants also. Okay? Acid rain decreases the soil fertility. Obvious सी बात है, soil को acidic ही करेगा. जब बारिश के पानी के साथ acid आ रहा है तो वो ultimately करेगा क्या? Soil को acidic कर देगा, और acidic करते ही soil की fertility ultimately कम हो जाएगी. Acid rain corrodes the marble of the historical monument. अब marble भी आ गया, historical monument का नाम भी आ गया. That means we are talking about Taj Mahal. Okay? This phenomena is also called marble cancer. इम्पैक्ट कर रहा है मार्बल को. कौन से? जो ताजमहल का है. क्यों कर रहा है? इसकी अब हम एक केस स्टडी करते हैं कि ताजमहल का और इस मार्बल कैंसर का क्या रिलेशन है, क्या हिस्ट्री है, क्या केस है. एवरीबडी हैड सीन ताजमहल इन टीवी, इन बुक, इजंट इट? ठीक है, रियल में भी देखा होगा बच्चों ने. बहुत सुंदर है, वर्ल्ड के 7 वंडर्स में इंक्लूड होता है. क्लियर? बट स्टूडेंट, फ्रॉम लास्ट so many years and nowadays it's become a matter of concern. And why it become a matter of concern, class? सोच के बताओ. Experts have warned that pollutants of air are discoloring its white marble. Yes, धीरे धीरे जो आपका सफ़ेद ताजमहल है ये पीला पड़ता जा रहा है. अगर हम जनरल बात करें तो ये उतना वाइट नहीं रहा है. ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है स्टूडेंट? सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाय पॉल्यूटेड एयर. इससे ये तो समझ में आ गया कि ये जो पॉल्यूटेड एयर है ये सिर्फ हमें इफेक्ट नहीं करी. हमें बोले तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट हो, एक्वेटिक एनिमल हो, चाहे वो हम हो, चाहे जनरल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो, ये लिविंग जो बीइंग है उनके साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनको भी इफेक्ट कर रही है. क्लियर? सो इट इज़ not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, monuments and statues are also get affected. समझ में आ गया? Class, the industries located in around Agra. Everybody knows that ना कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है. ठीक है, अब आगरा में जहाँ पर ताजमहल है उसके आसपास बहुत सारी रिफाइनरीज़ और इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हैं. ठीक है, अब रिफाइनरीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं या और भी जो बाकी फैक्ट्रीज़ हैं उनसे क्या निकलता होगा? एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते होंगे. तो ऑब्वियस सी बात है, दीज इंडस्ट्रीज़, द पॉल्यूटेंट्स विच आर कमिंग फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज़, दीज रिफाइनरीज़, दे आर द बिग कॉज ऑफ इट. ओके,
The industries located in and around Agra like rubber processing, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड स्पेशली, देखो अब स्पेशली नाम आ रहा है मथुरा ऑयल रिफाइनरी का, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और हमें पता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और जब भी बारिश होती है उसके साथ नीचे धरती पर आता है। क्लियर? एंड दिस इज द सिंपल एसिड रेन। ओके, these gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric and nitric acid. The acid drops down with rain, making the rain acidic. और इसकी वजह से ही वो जो मार्बल कैंसर है वो होता है, इट कवर्ड द मार्बल ऑफ दैट ताजमहल। क्लियर एवरीवन? Suspended particulate matter such as the shoot particles emitted by the Mathura oil refinery. अब ये shoot particles क्या है बच्चा, जब कभी एक incomplete combustion होता है ना, ठीक है, अब ये इनकम्प्लीट कंबशन क्या होता है बच्चा, जैसे कि कोई चीज़ पूरी तरह जलती नहीं है तो वो जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उसमें है ना छोटे छोटे आपको ना ऐसे जलते हुए वो नज़र आते हैं, ब्लैक ऐसे है ना पार्टिकल्स नज़र आते हैं, दे आर द सूट पार्टिकल्स। सो स्पेशली हेयर इन द केस ऑफ ताजमहल, जो ये मथुरा ऑयल रिफाइनरी है ना, ये यहाँ पर क्या होता है, इससे जो एमिट होने वाले जो सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स हैं लाइक द soot particles, they has contributed towards the yellowing of the marble. इनकी वजह से जो ताजमहल का मार्बल है वो धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। देखो हेयर इज़ अ कंपेयरिंग पैक। देखो पहले की बात करें आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, तो हमारा ताजमहल ऐसा दिखता था, मतलब इट इज़ ऑफ वाइट कलर, बट नाउ डेज इट बिकम येलो मार्बल। Clear everyone? Student, that's why that Taj Mahal becomes a matter of concern. And इसके लिए तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए to save the Taj Mahal. It has ordered industries to switch to cleaner fuels. Yes. अब वो क्या करें, स्विच करें। देखो हम फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बेटा बंद तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑटोमेटिकली हमारी जो इकोनॉमी है कंट्री की वो इससे फ्लक्चुएट हो जाती है। क्लियर? और हमारी भी काफ़ी नीड्स हैं, हमने इनको इस्टेब्लिश ही क्यों किया है, हमने फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनाई क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर नीड। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, इनको बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम हमारे फ्यूल्स को चेंज कर दें, लाइक CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Moreover, the automobiles should switch over to unleaded petrol in the Taj zone. और ये धीरे धीरे हमें देखने को भी मिलता है कि ताज का जो आसपास का एरिया है उसके अंदर हम क्या हैं, हम क्लीन फ्यूल वाले ऑटोमोबाइल्स देखते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं बहुत ही कंसर्न टॉपिक एंड दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो ग्रीन हाउस, ओके चलो ये हमारा हाउस हो गया। अब ये ग्रीन कैसे है? वी आर यूजिंग द ग्रीन कर्टेन्स here, clear, to make this house, and inside this house we are having so many प्लांट्स। अगर आपने कभी नर्सरी विजिट करी हो, प्लांट नर्सरीज वगैरह, तो आपने वहाँ देखा होगा कि ऐसे ना छोटे छोटे से मतलब तंबू गाड़े हुए होते हैं, है ना, ग्रीन कलर की कवरिंग होती है और उसमें बहुत सारे प्लांट्स रखे हुए होते हैं। देखो हमारे अर्थ सरफेस पे किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वार्म एनवायरनमेंट चाहिए। क्लियर एवरीवन? अब जिस प्लांट नर्सरी को हम विजिट करते हैं और वहाँ पर जहाँ हम ये चीज़ें देखते हैं, ऐसा एक घर देखते हैं जिसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं, व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली बेटा? देखो किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें
ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, मोर देन 30 डिग्री, मोर देन 25 डिग्री, इजंट इट? तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? देखो, ये हमारा सन है, ठीक है। अब सन से क्या है, हमें रेडिएशंस आ रहे हैं, क्लियर। अब ये रेडिएशंस क्या होता है, ये रेडिएशंस अंदर तो आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जो इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता है कि अर्थ पे जो रेडिएशंस आते हैं वो रिफ्लेक्ट भी होते हैं, क्लियर। बट from here, from this greenhouse, it is not possible for the radiation to just get out. They are not able to escape. Clear everybody? And that's why the temperature here get increases. Clear? जो radiation है वो बाहर जा ही नहीं पाए, और इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का temperature increase हो जाएगा. This is the simple greenhouse effect. Clear? Let's discuss it again. The sun rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. Clear? सिंपल सन से हमारे रेडिएशन आ रहे हैं, ये हमारा अर्थ का सरफेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थ पे, ठीक है। ये क्या होता है कि जितनी भी जो रेडिएशंस आते हैं उनमें से कुछ तो क्या होते हैं, अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को वो वापस क्या करती है, बैक रिटर्न कर देती है, कि कहाँ पर, स्पेस में। ग्रीन हाउस गैसेस प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस, वार्मिंग द प्लैनेट। अभी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं हम वो भी डिस्कस करते हैं, ओके। अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप कैसे करता है बच्चा, द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। अब देखो, if you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. Have a look here. ऐसे बने होते हैं नर्सरीज के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सन से रेडिएशंस तो आ जाते हैं लेकिन ये रेडिएशंस वापस बाहर नहीं जा पाते, और बाहर नहीं जा पाते तो क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। हमें सन से क्या मिल रही है, लाइट और हीट, तो यहाँ पर क्या है, जो हीट जनरेट हुई वो वापस नहीं जा पा रही है, क्लियर, और जिससे वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। The trapped heat warms a greenhouse. The trapping of radiation by the Earth's atmosphere is similar. ठीक है, सेम यही फिनोमेना हमारी अर्थ पे लागू होता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ में आ गया व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? द सोलर रेडिएशंस विच आर कमिंग फ्रॉम द सन ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, उनमें से कुछ रेडिएशन तो अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ को वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन कुछ रेडिएशंस क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होके बाहर नहीं जा पाते, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनको बाहर नहीं जाने देता, जिससे क्या होता है कि वो जो हीट है वो अर्थ के सरफेस पे ही रह जाती है, वो ट्रैप कर लेती है, एंड दिस इज द सिंपल ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ। यस, अगर ये प्रोसेस नहीं होगी तो हम लाइफ, अर्थ के ऊपर लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, इजंट इट? समझ में आ गया? बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ, लेकिन धीरे धीरे अब ये हमारे लिए हार्मफुल होता जा रहा है। हार्मफुल क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये हमें नुकसान दे रहा है। हाउ? एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर इज़ वन ऑफ द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। इम्पॉर्टेंट वन, देखो एक ग्रीन हाउस गैस पता चल गया है, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर एवरीबॉडी?
ठीक है। अब वापस से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन धीरे धीरे हमारे जो एयर पॉल्यूटेंट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन रोल प्ले कर रही है, और यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी ग्रीन हाउस गैसेस में से एक गैस है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, on the one hand CO2 is continuously being released because of human activities. Yes, we are releasing, we are taking oxygen and releasing carbon dioxide, and plants are using carbon dioxide for the photosynthesis process. Okay, on the other hand area under forest is decreasing, deforestation. समझ में आया? Plants utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis. Clear? Thereby decreasing the amount of CO2 in the air. Plants environment में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट डिक्रीज करते हैं, क्योंकि वो उसको अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए काम में लेते हैं। लेकिन अब हमने क्या किया? हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया फॉर आवर यूजेस। हमने बिल्डिंग्स बना दी, हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, हमने खेत बना दिए, हमने फ्लैट लैंड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास वो ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके। Deforestation leads to an increase in the amount of carbon dioxide in the air because the number of trees which consume CO2 is reduced. Human activities thus contribute to the accumulation of CO2 in the atmosphere. Yes, है human activities responsible इसी चीज़ के लिए। CO2 traps heat. Clear? Does not allow it to escape into space. That's why it is the main greenhouse gas. Clear? As a result, the average temperature of the Earth's surface, Earth's atmosphere is gradually increases, and this is called global warming. देखो, ये हमारा अर्थ है, हाँ, सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं वो हमने एब्जॉर्व कर लिए, हमारी अर्थ ने जितनी ज़रूरत थी। जो थे रिफ्लैक्ट होने थे वो रिफ्लैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, जो CO2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। बढ़ गया है तो ये क्या करती है, ये जो सोलर रेडिएशन है, जो हीट है, उसको ट्रैप कर लेती है। अब ट्रैप कर लेगी तो धीरे धीरे हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, चाहे वो मतलब आधा डिग्री बढ़ रहा है, चाहे वो 1 डिग्री बढ़ रहा है। बेटा ये जो है ना क्या बोलते हैं, ½ डिग्री और 1 डिग्री, ये इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, इससे क्या है, हमारा अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। हम ग्लोबली गर्म हो रहे हैं, पूरा का पूरा अर्थ। क्लियर एवरीवन? ओके। In addition to the carbon dioxide, other gases, देखो important one, other greenhouse gases are methane, nitrous oxide, water vapor also contribute towards this effect. Like CO2, they are also called greenhouse gases. तो greenhouse gases कौन कौन सी होगी क्लास 8th? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड। यस, सोचो धीरे धीरे हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट देखने को नज़र आएगा बच्चा। ठीक है, अब ये इम्पैक्ट की वजह से जितनी भी जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट्स अब क्या हो गई हैं, अब फटाफट से अवेयर हो गई हैं दैट व्हाट वी हैव टू डू। सो स्टूडेंट्स, मैनी कंट्रीज़ हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस।
ठीक है, अब सोचने लग गए हैं अब हम अवेयर हो गए हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हम ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मीथेन है, ठीक है, जो अदर नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह हैं, इनका एमिशन कैसे कम से कम करें जिससे कि ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़े नहीं। क्लियर एवरीवन? एंड द क्योटो प्रोटोकॉल इज वन सच एग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद, so you have to just answer with the greenhouse effect. Clear everyone? Student, global warming a serious threat. अब देखो, हम कब से कह रहे हैं कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर इस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इंक्रीज हो रहा है एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबली हम गर्म हो रहे हैं सब कुछ, तो उसके इम्पैक्ट क्या हैं? सपोज ग्लेशियर्स पे क्या है, हमारी बर्फ़ जमी हुई है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ग्लेशियर्स की आइस क्या करेगी? मेल्ट होगी। हमें पता है हमारी रिवर्स वहीं से निकलती हैं, तो अल्टीमेटली हमारा जो पानी का लेवल है रिवर्स में वो बढ़ेगा, ठीक है, या जो सी हैं, जो ओशियंस हैं, उसकी वजह से क्या होगा? जैसे ही सी लेवल, वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है, जो बैंक होते हैं, रिवर बैंक्स वगैरह होते हैं, समुद्र के किनारे जो होते हैं, वहाँ पर जो सिटीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी? वो धीरे धीरे पानी में डूब जाएंगी। क्लियर एवरीवन? इसका मतलब ये है कि हमारी जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। क्लियर? और इसके साथ बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इसके। Global warming can cause sea levels to rise dramatically. In many places, coastal areas have already been flooded. बाढ़ आ जाती है, शहर के शहर बह जाते हैं। Global warming could result in wide-ranging effects on rainfall patterns. Yes. आप लोगों ने अपने घर में सुना होगा कि पहले एक पर्टिकुलर वक्त हुआ करता था कि मौसमों का भी, कि भाई हमारे यहाँ तो इस टाइम तक सर्दियाँ रहती थी, इस टाइम तक गर्मियाँ आ जाती थी और इस टाइम बारिश हो जाती थी। आजकल क्या है? कभी भी सर्दी हो जाती है, कभी भी अचानक से हेल स्टॉर्म हो जाता है, isn't it? So it ultimately affect the rainfall pattern, agriculture, forest, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। क्लियर एवरीवन? Majority of people living in region which are threatened by global warming are in Asia and we are in Asia. ठीक है ना? इंडिया एशिया में ही है, ये तो सब बच्चों को पता है ना? Otherwise, the temperature may rise by more than 2 degrees Celsius by the end of this century, a level considered dangerous. सोच के देखो बेटा, अगर आधा डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और हम तो बात कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी द टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 2 डिग्री। हाउ हार्मफुल इट विल बी फॉर अस। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ जितनी ज़रूरत हो ना उतना ही हम हमारी इन सारी जो फैसिलिटीज़ हैं इनको यूज़ करें, स्पेशली आर ऑटोमोबाइल्स। अब हम बात कर सकते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। हमारा क्या रोल है कि हम कम से कम एयर पोल्यूशन में पार्टिसिपेट करें। क्लियर? सो हियर वी आर डिस्कसिंग द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। Air pollution can be controlled by the following methods. Very first, reduce the use of fossil fuels. देखो fossil fuels क्या है? आपका पेट्रोल और डीजल। Clear? By switching to alternative energy sources. अब तो हमारे पास बहुत सारे alternatives आ गए हैं मार्केट में। The other sources could be solar energy, hydropower and wind energy. क्लियर एवरीबॉडी? अब हमें क्या करना है? अब हमें स्विच करना है अपने आप को। ओके, सेकेंड वन, स्क्रबिंग डाउन इंडस्ट्रियल एमिशन विद वाटर बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू एयर हेल्प्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। देखो ये भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उनको डायरेक्ट एयर में एमिट ना करें। वी कैन मिक्स इट विद वाटर एंड देन वी कैन डिस्कार्ड इट। Clear everyone?
because this process removes oxides of नाइट्रोजन एंड सल्फर. जब इनको ही रिमूव हो जाएंगे तो अल्टीमेटली एसिड रेन भी नहीं होगी. क्लियर एवरीवन? एंड अदर सॉल्युबल गैसेस बिसाइड्स सस्पेंडेड सॉलिड्स. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, some cars have a special device called catalytic converter. Clear? कुछ कार्स के पास स्पेशल डिवाइसेस हैं आजकल मार्केट में जिनके पास क्या है, कैटालिटिक कन्वर्टर हैं, विच कैन चेंज हार्मफुल एग्जॉस्ट गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर. इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. क्लियर एवरीवन? Further, switching to unleaded petrol or compressed natural gas, that is the CNG. देखो, एक वक्त था कि दिल्ली की हालत इतनी ख़राब थी कि पोल्यूशन का लेवल मतलब वर्ल्ड के मतलब टॉप मोस्ट कंट्रीज़, टॉप मोस्ट सिटीज़ में आ डाली. ठीक है, लेकिन स्विच किधर किया हमने? क्लीन फ्यूल्स की तरफ. क्लियर? CNG की तरफ. हैज़ रिड्यूस्ड एयर पॉल्यूशन इन आर मेट्रो सिटीज़ कंसिडरेबली. और देखो दिल्ली के अंदर तो ये CNG बसेस भी रन होती हैं. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इको फ्रेंडली CNG बसेस. क्लियर एवरीवन? ओके. Replacing wood, coal and kerosene with LPG for domestic use can reduce the pollution. समझ में आ गया? ओके. और हम क्या कर सकते हैं? वन कैन प्लांट ट्रीज एंड नर्चर द वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड. देखो बेटा, सबसे बढ़िया तरीका है जो हम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट. क्लियर? वो क्या है कि हम प्लांटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा. अब प्लांटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लांट लगा के छोड़ दिया और वो राम भरोसे हैं. नहीं, यू हैव टू नर्चर दैट प्लांट ऑल्सो. अगर आप प्लांट लगाने के लिए आपके पास स्पेस नहीं है तो कोई बात नहीं, जो ऑलरेडी प्लांटेड ट्रीज़ हैं, प्लांटेड प्लांट हैं, आप उनको नर्चर करो, उनकी देखभाल करो. क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. One Mahotsav is celebrated in July every year in which millions of trees are planted. Okay. Compositing of dried leaves and twigs is a better option rather than burning. देखो, जलाने से तो धुआं ही होगा. Ultimately it becomes the pollutant of air. क्लियर एवरीवन? तो इससे बेहतर क्या है, हम उनका कंपोजिटिंग करें, उनका खाद बनाएं. एक गड्ढा खोद लें और उसके अंदर उसको डाल दें, फिर उसको बंद कर दें. अल्टीमेटली वो बनेगा तो क्या, खाद ही तो है भाई. प्लांट्स की जो ड्राइड लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, ठीक है, ये सब क्या करेगा, एक बहुत अच्छा मैन्योर फॉर्म होगा. सो क्लास, विद दिस टॉपिक today's video is complete. Here we discuss the air pollution and its harmful effects. In the coming video, we will discuss water pollution and its harmful effects. Clear everyone? Till then, take care yourself and revise what we learned today. Thank you everyone.